In stator, there is a three-phase winding, maybe star connected or delta connected. Okay, slots are there. Just like synchronous machine, stator construction is exactly same as synchronous machine. Three-phase winding, displaced in space by 120 degree. Regarding rotor, regarding the rotor of induction motor, it is of two types. One is squirrel cage type and second one is स्लिप रिंग टाइप. ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में कि रोटर कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट व्हेन यू कंपेयर योर कंस्ट्रक्शन विद सिंक्रोनस मशीन. In synchronous machine, salient pole type, non-salient pole type, or salient pole type, or cylindrical type. Cylindrical means circular. Salient pole means poles are projected. Right? But in case of induction motor, it is a squirrel cage type. Cage is there, bars are there, or second one is slip ring type, or we call it as face wound type. Face wound type, in which three-phase winding is there, end-to-end short circuit. In induction motor, we are not giving any supply, but in synchronous motor, always DC supply is given. So keep in mind when you are studying induction motor and synchronous machine. Synchronous machine is different, induction machine is different. Synchronous machine construction is different, induction motor construction is different. So compare it. Comparison is very important. If you are not comparing synchronous machine with induction motor, you will be confused. Compare it and make it clear in concept in the mind. इस synchronous machine में हमको DC supply rotor में देनी पड़ती. Induction motor में rotor short circuited होता है. Rotor already short circuit. तो working principle of synchronous machine and induction machine दोनों different है, तो आपको पता है. तो first part is construction. हमने already पढ़ा है कि when three-phase supply is given to construction आप लोगों ने पढ़ लिया already. Will not discuss too much about construction. Second question is what is the principle of operation? Operating principle. These are the questions which are regularly asked in Viva or exams. What is the operating principle of three-phase induction motor? What is the construction details of three-phase induction motor? Just basic. You should be prepared for this. Anybody can ask you in Viva anytime, what is the operating principle of induction? If you go for any interview for core sector, core electrical, what is the induction motor working principle? What is the synchronous machine working principle? Operation principle. तो ये आपको पूछा जाता है, तो ये आपको पता रहना. We have already discussed. आपके पास recording भी आप उसको देख सकते हो. उसमें how the power is transferred from stator to rotor by transformer action, induction action. And फिर rotor में जो current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force and rotor starts rotating. आपने already देखे होंगे. When three-phase supply is given to three-phase stator winding, a rotating magnetic field is produced, north pole and south pole, which rotates at synchronous speed. North pole and south pole बनते हैं पहले. And this north pole and south pole induce EMF on the rotor. Rotor में induce EMF होता है. फिर रोटर में करंट आता है. करंट आता है तो the current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force and this rotor will start rotating. Rotor rotate होने लग जाता है. All should know this principle. ये तो बेसिक चीजें, ये सबको आता है. फिर इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो that part is very important. Derivation of torque equation. What is the value of torque? What is the value of torque? So torque equation is very important. Torque is equal to 3 E2 square R2.
ठीक है, दिस इज द टॉर्क इक्वेशन, एवरीबडी शुड नो टॉर्क इक्वेशन. Everybody should know the torque equation. So how to derive this torque equation in general equation of torque, which we have already taken. ये torque equation का derivation सबको आना चाहिए और ये इसी पे पूरी आपकी characteristics, पूरा working principle वगैरह बेस्ड. एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आपको पास रहना चाहिए हमेशा टॉर्क. This is a torque equation which is dependent on slip, where S is equal to ns minus n by ns. Everybody should know the significance of slip. पूरा entire machine operation, induction motor operation is based on the function slip. आपने देखे होंगे कि पूरा स्लिप पे डिपेंडेंट होता है और सिंक्रोनस मशीन में अगर आप जाओगे तो सिंक्रोनस मशीन का जो ऑपरेटिंग वगैरह सब है वो डेल्टा पे डिपेंड, लोड एंगल और पावर एंगल होते हैं. तो यू रिमेंबर ऑलवेज कि हर प्रोसेस में, इन एनी प्रोसेस, कोई भी सिस्टम में ना, कोई भी प्रोसेस आप पढ़ते हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वही पूरा गवर्न करता है. तो आप देखोगे कि इंडक्शन मोटर का पूरा ऑपरेशन स्लिप पे डिपेंड है. स्लिप यानी जो वेरिएबल है, जैसे आप 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ते हो तो पूरा एक्स 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 पे पूरी दुनिया एक्स पे चलती है, वेरिएबल फैक्टर एक्स है. वैसे ही सिंक्रोनस मशीन हम पढ़ते हो तो आप लोग पावर सिस्टम भी पढ़ रहे हो अभी, तो यू विल फाइंड दैट लोड एंगल जो होता है डेल्टा, इंड्यूस ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, वो लोड एंगल इज रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटायर एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय लोड एंगल. लोड एंगल तो वेरिएबल लोड एंगल जो होता है वो होता है पावर, पूरा पावर टॉर्क को. बट इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर द वेरिएबल इज, ये मैं आपको थोड़ा सा केयरफुली बोल रहा हूं कि ये चीजें पे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग रहना चाहिए. When you study drives, electric drives, here you are not controlling machine. Here you are understanding how machine works. When you want to control machines through some mechanism, electronic control, through microcontroller, तो आपके पास वेरिएबल फैक्टर होगा. आपको डेल्टा कंट्रोल करना पड़ेगा. जैसे इंडक्शन मोटर में आप अगर स्लिप कंट्रोल करोगे तो आपकी मशीन की स्पीड कम ज्यादा, स्पीड, पावर, टॉर्क सब. So motion control is called as drives, connecting more than n number of machines and controlling its motion, like speed control, braking, speed control, और generation जो भी करना है उसके लिए पूरा फैक्टर जो है वो क्या है, स्लिप. Therefore this factor, S factor is very important. इस स्लिप अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप टॉर्क को कंट्रोल कर. ठीक है, क्लियर? इज क्लियर? नाउ कम टू, वंस दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड, इसमें आप स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क का भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हो. स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, एंड मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपको S के जगह R2/x रखना पड़ेगा, तो फिर वो डिराइव हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा. एक इक्वेशन से हो जाएगा. तो ये इक्वेशन आपको याद है. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क इक्वेशन वी आर इन पोजीशन टू प्लॉट द टॉर्क
स्पीड क्या है, और मोटर व्हील वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली टॉर्क। टॉर्क आपका कंट्रोल है, यू कैन कंट्रोल द ड्राइव मैकेनिज्म, यू कैन रन एन नंबर ऑफ ड्राइव्स, एन नंबर ऑफ मशीन्स टुगेदर एंड कंट्रोल द। आपको मोशन कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो 0 से ns तक के चलते हैं, ठीक है। बट दिस फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ns, तो हमारे पास स्लिप फंक्शन है, तो हम स्लिप को भी प्लॉट करते हैं। स्लिप इज इक्वल टू 1 to 0। व्हेन स्पीड इज इक्वल टू 0, स्लिप इज इक्वल टू 1, याद रखो। ns माइनस 0 बाय ns 1 हो जाएगा। और व्हेन स्लिप इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू ns, स्लिप इज 0, स्लिप 1 से 0। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में केयरफुली पढ़ा था, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by s, and at running condition torque is starting torque of 3-phase induction motor is inversely proportional to s, and running torque is directly proportional। ये सारी बातें आपको पता होना, ठीक है। यू शुड रिमेंबर इट, you can learn it, read it again and again, read from many books, see some videos, torque, sleep, torque, speed, ये सब एनालिसिस आपको पता है। स्टार्टिंग पैराबोलिक इन नेचर like this, and running almost straight line। running condition straight line, yeah, this is Tmax। तो एनालाइज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी वेरी केयरफुली। आप बहुत केयरफुली इसको समझो, समझने की कोशिश करो कि हाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स coming, why this is non-linear, why the nature is like this, then straight line। ये सब चीजों को समझने की कोशिश करो। There is a lot of things to understand just characteristics of three-phase induction। हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बट बेसिक इस टॉर्क इक्वेशन को समझो और ये कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। अगर ये टर्मिनोलॉजी, इफ यू अंडरस्टूड दिस, देन यू आर इन पोजिशन टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ओवरऑल हमें एंड ऑफ द डे न्यूमेरिकल्स करना आना चाहिए। एनी हाउ एवरीबडी विल पास दिस एग्जाम, एवरीबडी विल गेट डिग्री, बट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना अगर आपको आ गया, मीन्स नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर पासिंग एनी बिग एग्जाम। गेट एग्जाम हो गया, MSCB का एग्जाम हो गया, तो वहां पे आपको न्यूमेरिकल ही आएगा। गेट इज अ स्टैंडर्ड एग्जाम, वहां पे आपको न्यूमेरिकल ही आएगा अगर कोर इलेक्ट्रिकल में आपको पढ़ाई करनी है। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये मैक्सिमम पॉइंट होता है। यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या होती है, R2/X2। एट दिस पॉइंट स्लिप वैल्यू इज R2/X2, ठीक है। ये पोजीशन मैक्सिमम पॉइंट पे स्लिप की वैल्यू R2/X2, ये हमने डिराइव किया था, ठीक है। स्प्रिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, ये सब चीजें। ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये आपका हो गया एक बार, यू कैन प्रोसीड फर्दर। फिर हमने एक पॉइंट और देखा था कि मैक्सिमम टॉर्क की जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम चेंज कर सकते हैं। द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क पॉइंट वी कैन चेंज, बट टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क विल नॉट चेंज। टॉर्क मैक्सिमम Tmax से ऊपर हो नहीं सकता, बट उसका पॉइंट हम चेंज कर सकते, शिफ्ट कर सकते। तो जितना इधर शिफ्ट करोगे उतना फायदा है, क्योंकि वी वांट मैक्सिमम टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। कोई भी मशीन को स्टार्ट करने के लिए यू नीड अ मैक्सिमम टॉर्क। You take example of automobiles and a mechanical system,
मैकेनिकल सिस्टम में ऑलवेज यू स्टार्ट योर मोटर और योर बाइक और योर कार और योर स्कूटी एनीथिंग on first gear and running in fourth gear or fifth gear. What is the mechanism? Power is constant, but the gears, what gears do? If it is in first gear, it will give maximum torque. The torque is maximum, but speed is low, t omega, but power remains constant. तो हम क्या करते हैं, ये ऐसा होता ना, T1 ओमेगा 1 is equal to T2 ओमेगा इन केस ऑफ गियर मैकेनिज्म. टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड बढ़ेगा तो टॉर्क. तो T1 ओमेगा 1 में क्या होता है, टॉर्क ज्यादा रहती है, स्पीड कम होती है, और यहाँ पे टॉर्क कम होती है, स्पीड बढ़ती है. इसलिए गियर मैकेनिज्म का कंसेप्ट ही वैसा है कि इनिशियली आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए और रनिंग कंडीशन में लो टॉर्क. तो वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, सॉरी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए व्हाट विल डू, विल शिफ्ट द मैक्सिमम टॉर्क एट द स्टार्टिंग पॉइंट. हम शिफ्ट करने की कोशिश करें. जैसे मैंने इसको थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर दिया, मैक्सिमम टॉर्क को मैंने शिफ्ट कर दिया. शिफ्ट कर दिया तो मुझे क्या फायदा हो गया कि मोटर जल्दी स्टार्ट हो. पर्पस क्या है कि to start motor initially immediately to start motor. कई बार मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है जब जीरो स्पीड है. लाइक दिस वी कैन शिफ्ट. आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैक्सिमम टॉर्क को स्टार्टिंग टॉर्क बना सकते हैं, मैक्सिमम टॉर्क को स्टार्टिंग टॉर्क भी बना सकते हैं. तो उसमें आर चेंज होती है. तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा स्टार्टिंग में. लेकिन बढ़ेगा नहीं, टॉर्क नहीं बढ़ रहा है, पोजीशन शिफ्ट हो. मैक्सिमम टॉर्क पोजीशन इज शिफ्ट. राइट, maximum torque position is shifted, maximum torque is not shifted, maximum torque position is shifted. तो ये क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल बनता है कि what will be the resistance to be added, what will be the amount of resistance to be added in the rotor circuit so that the maximum torque is shifted to starting position. तो आपको ना रेजिस्टेंस डालनी पड़ती है. रोटर के रेजिस्टेंस R2 है, इसमें एक R नाम का एक रेजिस्टेंस ऐड है. समटाइम्स दिस न्यूमेरिकल इज ऐड कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. और ये हम स्क्वेरल केज रोटर में नहीं डाल सकते. वंस आपने इंडक्शन मोटर खरीद लिया स्क्वेरल केज टाइप, केज की वाइंडिंग में आप रेजिस्टेंस नहीं डाल सकते. बट सेकेंड है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और फेस वुंड इंडक्शन मोटर. स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और फेस वाउंड इंडक्शन मोटर, उसमें आप रेजिस्टेंस डाल सकते हो. उसका कनेक्शन ऐसा रहता है, आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे स्लिप रिंग्स होती है. ये रिंग से ऐसा कनेक्शन आउटर वर्ल्ड से चलता रहता है, एक रिंग के थ्रू कनेक्शन रहता है. यहाँ पे आप एडिशनल रेजिस्टेंस डाल सकते हो. वेरिएबल रेजिस्टेंस डाल सकते हो. ठीक है. दिस यू शुड रिमेंबर कि इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, in case of slip ring induction motor or phase wound induction motor, you can add external resistance in the circuit. This point is very important. Or adding external resistance will change the speed भी change करेगा और आपका starting torque भी change करेगा.
स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ रहा है आपका एंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क चेंज। टॉर्क मैक्सिमम नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ के मैक्सिमम हो जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क ऊपर नहीं जा सकता। टॉर्क एक बार जो मैक्सिमम फिक्स हो गया मींस फिक्स हो गया, बट पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क इज चेंज एंड स्पीड इज आल्सो चेंज एंड स्टार्टिंग टॉर्क इज आल्सो शिफ्टेड from one step. For starting purpose, we add a external resistance in the rotor. But this resistance can be added only to phase wound or slip ring induction motor. This facility is not available in squirrel cage induction. स्क्वेरल केज टाइप इंडक्शन मोटर में कोई जगह नहीं होती कि आप उसमें रेजिस्टेंस डाल दो, और ये रेजिस्टेंस इज नॉट परमानेंट। वंस मोटर स्टार्ट हो गया तो देखो इसकी स्पीड कम हो गई। यू कैन सी अगर ये रनिंग टॉर्क है तो पहली स्पीड ये थी, दूसरी स्पीड ये है, तीसरी स्पीड ये है, चौथी स्पीड कम हो रही है। तो स्पीड भी हमें कम नहीं करना है, हमें अगर हाई स्पीड में ही चलाना है तो रेजिस्टेंस डालने से स्पीड कम होती है, लॉसेस भी होते हैं। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज एडेड फॉर स्मॉल टाइम। एक बार ऑन हो गया तो रनिंग टॉर्क तो हमारा कम है, रनिंग टॉर्क इज वेरी लो, बट जीरो स्पीड से ऑन होने के लिए यू नीड अ हाई। जस्ट लाइक इन ऑटोमोबाइल, फॉर स्टार्टिंग यू नीड अ फर्स्ट गियर, रनिंग कंडीशन, फुल स्पीड रनिंग कंडीशन, यू यूज अ फोर्थ गियर। गियर मैकेनिज्म ऑफ कोर्स होता है ऑटोमोबाइल में, दिस यू शुड रिमेंबर। बट लड़के तो बाइक वगैरह चलाते हैं, बट जो मोपेड है, स्कूटी है, एक्टिवा है, उसमें भी ऑटोमेटिक गियर्स होते हैं, दिस यू रिमेंबर। ठीक है, यू आर नॉट चेंजिंग गियर। ऑफ कोर्स अगर इफ यू आर यूजिंग बाइक आपको दिखता है गियर्स चेंज करना, बट इन केस ऑफ मोपेड जो है आपके एक्टिवा, स्कूटी, प्लेजर वगैरह, इसमें ऑटोमेटिकली गियर चेंज होते हैं वन स्पीड की। तो आप ऐसा समझना नहीं कि वो टॉर्क इनटू स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट होता है पावर, तो आपको हाई टॉर्क के लिए इनिशियली फर्स्ट गियर चाहिए। तो वैसे ही इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर हमें स्टार्ट करने के लिए हम रजिस्टर से डाल के स्टार्ट करते हैं, फिर वो स्मूथली। पर्पस क्या है कि आप इनिशियली टॉर्क बढ़ाओ ऑन करते समय, फिर टॉर्क करो, फिर आप रेजिस्टेंस हटा दोगे, तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा, फ्री रनिंग। देयर इज वन क्वेश्चन विच इज ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रेजिस्टेंस कितना ऐड करोगे, इसका क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ मच द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड इन द सर्किट। ये मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस को आप फास्ट में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 34.14, ठीक है, इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 34.14 ए, तो 3 phase 400 volt by 200 volt star connected wound rotor induction motor has 0.06 rotor resistance and 0.3 ohm standstill reactance per phase. Find the additional resistance required in the rotor circuit to make the starting torque equal to the maximum torque of the rotor. ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, one formula is already with you, T starting by T max. I hope so ये फॉर्मूला है सबके पास। और T रनिंग बाय T मैक्स भी एक है, T रनिंग बाय T मैक्स क्या होता है, 2 S SM अपॉन
ये ऐसा एक फॉर्मूला है। तो स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, हमने एक डिराइव किया था, आप अपने नोट्स में देख सकते हो। S इज द रनिंग स्लिप, SM इज द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। और हमें क्या निकालना है, स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क को इक्वल करना है। तो T स्टार्ट में T मैक्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, S क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2SM अपॉन S स्क्वायर प्लस 1। देखो टॉर्क एंड स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, रनिंग टॉर्क, इसके हमने रिलेशन डिराइव किए थे, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा केयरफुली। रनिंग टॉर्क क्या था आपके पास, बी केयरफुल, रनिंग टॉर्क इज 2 टाइम SM 2S SM बाय S स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। फिर मैंने इसको और 2 बाय में किया था, और स्टार्टिंग में जाओगे तो S इज इक्वल टू 1 रख दिया तो 2SM बाय 1 प्लस S। ये आपको थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा, अगर ये आप कर लोगे तो हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल में देखो, फाइंड द एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द रोटर सर्किट टू मेक स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क, ये आपको करना है, ठीक है। तो बी केयरफुल। अब ये बहुत इजी हो गया। SM क्या होता है, ऑलरेडी स्टडी, R2 बाय X2, ठीक है, सॉरी ये SM होगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द रोटर सर्किट टू मेक स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क को आपको क्या बनाना है, मैक्सिमम टॉर्क बनाना। TST बाय T मैक्स इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एंड R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R करना पड़ेगा। R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R करना पड़ेगा, तो आपका फाइनल आंसर ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 SM अपॉन 1 प्लस SM स्क्वायर। ये इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लो आप एंड SM की वैल्यू निकालो। उसमें A लिखा है, वैसे हमें A को मैंने पढ़ाया नहीं, आपको SM की वैल्यू निकालो। इसे सॉल्व करोगे तो आपको SM की वैल्यू, इसको जस्ट सॉल्व करो तो यू विल फाइंड द वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ SM। SM की वैल्यू कितनी आती है, देखो A की वैल्यू इन्होंने कितना निकाला है, 1 ही आया है। R2 बाय R2 इज इक्वल टू X1 आ रही है। इसको आप सॉल्व करोगे तो, बिकॉज ये 1 है तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 1 ही आएगा। SM इज कमिंग 1, ठीक है। और फॉर मैक्सिमम पावर कंडीशन, मैक्सिमम पावर कंडीशन क्या होता है, SM इज इक्वल टू R2 बाय X2, एंड R2 में हमने क्या ऐड किया है, स्मॉल r है। तो 1 को डाल दोगे, सॉल्व कर दोगे तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। R की वैल्यू आ रही है 0.24। The value of R is coming 0.24. So this value is very important. This value, जो R की वैल्यू है, मैंने देखो बुक इसमें सॉल्व किया है, 1 प्लस SM इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू T स्टार्टिंग बाय T मैक्स 1 है, इक्वल कर रहे हैं, 1 इज इक्वल टू 2 SM बाय 1 प्लस SM। इसको सॉल्व किया तो मुझे SM की वैल्यू 1 मिली, और SM इज इक्वल टू क्या होता है, R2 प्लस R बाय X2। R2 बाय X2 होता है, लेकिन हमने R ऐड किया तो R की वैल्यू 0.2। तो यू कैन सी दैट 0.24 ओम का रेजिस्टेंस, 0.24 ओम का रेजिस्टेंस मैंने रोटर सर्किट में ऐड कर दिया, तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क यहां से यहां पर, और मोटर जल्दी स्टार्ट। 0.24 ओम का रेजिस्टेंस मैंने अगर ऐड कर दिया, 0.24 ओम है ना, 0.24 ओम का,
0.24 ओम का रेजिस्टेंस, 0.24 ओम का रेजिस्टेंस मैंने अगर रोटर सर्किट में ऐड कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंच जाएगा एंड आपका काम हो जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट होता है सिग्निफिकेंस, दिस इज कोर इंजीनियरिंग, ठीक है, इट इज द कोर इंजीनियरिंग वर्क कि हाउ टू कंट्रोल स्पीड, हाउ टू कंट्रोल टॉर्क, हाउ टू कंट्रोल पावर, हाउ टू कंट्रोल द ड्राइव्स मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यू नीड टू कंट्रोल स्लिप, और स्लिप को कंट्रोल करने के लिए हमने एडिशनल रेजिस्टेंस आर है। ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट होता है। आपको कोई भी मशीन्स की मैकेनिज्म समझनी है तो उसकी न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिकली समझो। एवरी न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल इन एग्जाम हैज अ कंसेप्ट। तो आप पहले कंसेप्ट पढ़ोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, कंसेप्ट पढ़ोगे, तो आपको कंसेप्ट बनेंगे। यू हैव टू डिवोट सम टाइम। आप ज्यादा मत पढ़ो, कम ही पढ़ो, लेकिन उसको कंसेप्ट बनाओ, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर रनिंग अ ड्राइव मैकेनिज्म। आपको स्पीड कंट्रोल करनी है, कभी टॉर्क बढ़ानी है, टॉर्क कम करनी है, टॉर्क की पोजीशन कम करनी है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। स्टार्ट करोगे रेजिस्टेंस रनिंग कंडीशन में, देयर इज नो नीड ऑफ रेजिस्टेंस। रनिंग कंडीशन में ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, पावर लॉस करेगा। पावर लॉस करेगा, आपकी स्पीड भी देखो यहां से यहां शिफ्ट हो गई। तो रनिंग कंडीशन वी आर नॉट यूजिंग एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बहुत कम है, 0.24 ओम है, बट इट इज क्रिएटिंग ए इंपैक्ट टॉर्क को चेंज कर। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको थोड़ा सा केयरफुली पढ़नी पड़ेगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स क्यूरीज, आप पढ़ो और कम टू कॉलेज, विल डिस्कस। आपको कोई डाउट्स क्यूरीज है तो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मशीन इज नॉट लर्न इन वन डे, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेशेंस। आपको थोड़ा सा पेशेंस भी पढ़ते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो दे कैन आस्क। टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो आई कैन स्टॉप हियर। Anybody having any doubt or queries, they can ask. आप पूछ सकते हो। Anybody having any doubt? ठीक। और किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह में प्रॉब्लम होगी, क्यूरीज होगी, तो आप रुईकर सर से मिल लो, मुझे भी बता सकते हो। किसी के कोई मार्क्स उसमें कुछ इश्यू है तो प्रॉब्लम है, आपको मार्क्स सही लग रहा है, नंबर नहीं मिले, that can be considered, right? Okay, that's all from today from my side. Anybody having any questions, they can ask. Next class will be tomorrow. Okay.